خدا کی ستائش کرتے ہیں کہ خدا نے ایک بار پھر موقع بخشا کہ ہم اس کے حضور جمع ہیں اور آج ہم اس کے کلام کو جس کی آواز ہے اسے سننے کا ہے، ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنی ہدایت کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے خدا کے زندہ اور بابرکت کلام اس سے سیکھیں گے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں مقدس مرکز کی انجیل، مقدس مرکز کی انجیل اس کا 5 باب، اس کی 35 سے 43 آیت تک پڑھیں گے۔ آئے نکالیں گے مرکز کی انجیل اس کا 5 باب، اس کی 35 سے 43 آیت تک۔ جی آئیے پڑھیں گے۔ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا، تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر اس سے کہا، تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، طلعتا قومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ پھر اس نے ان کو تکیے سے حکم دیا، یہ کوئی نہ جانے، اور فرمایا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ خدا کے زندہ اور بابرکت کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج ہم نے خدا کے زندہ اور بابرکت کلام میں سے پڑھا ہے مقدس مرکز کی انجیل میں سے۔ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ایک واقعہ ملتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے یہ کہانی بہت دفعہ سنی ہوئی ہے یائر کی بیٹی کے بارے میں، کہ کس طرح وہ عبادت خانہ کے سردار کی بیٹی تھی، اور سردار کا نام تھا یائر، اور اس کی بیٹی تھی وہ 12 برس کی تھی۔ اور ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ کیا ہوا جب یسوع مسیح گئے تو انہیں دیر ہو گئی تھی۔ اگر ہم یہ بات شروع میں پڑھنے لگ جائے تو کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ میں ویسے آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں کہ جب یسوع مسیح کشتی میں تھے، کشتی پار کر کے جا رہے تھے، بڑی بھیڑ ان کے پیچھے آئی، اور ان بڑی بھیڑ میں سے ایک یہ شخص بھی تھا، یعنی کہ سردار، عبادت خانہ کا سردار، یعنی کہ یائر تھا۔ اس بھیڑ میں سے یائر تھا، اور یائر یسوع مسیح کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا تھا، اور یسوع مسیح بھی اسے جانتے تھے۔ اور جب وہ جا رہا ہے تو وہ یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہے۔ کون چلتا ہے بھئی یسوع مسیح کے ساتھ؟ یائر۔ یائر جو ہے یسوع مسیح کے ساتھ چلتا ہے، اور راستے میں بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے یسوع مسیح کے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کو شفا دینے کا معجزے کا اختیار تھا، اور جب وہ بیماروں پر ہاتھ رکھتا تھا تو وہ اچھے ہو جاتے تھے۔ اس سارے واقعہ کے درمیان ایک اور واقعہ آتا ہے۔ جب وہ جا رہے تھے، یائر کی طرف جا رہے تھے، یائر کے گھر کی طرف یسوع مسیح جا رہے تھے، تو راہ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک عورت تھی جسے 12 برس سے خون جاری تھا۔ یہ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، اور ہم سب اس واقعہ سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک عورت تھی جسے 12 برس سے خون جاری تھا، اور اس کا ایمان تھا کہ میں اگر بھیڑ میں سے جاؤں گی تو بس اس کا ایک پلہ چھو لوں گی، بس اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی،
तो शिफा पाऊंगी। ये उसका था ईमान। और यकीनन जब उसने छुआ उसने शिफा पाई। और जब यीशु मसीह को पता चला कि नहीं किसी ने मुझे छुआ है, ताकि उसके बदन में से रूह निकली है, रूह का मतलब उसके बदन में से शिफा निकली है, तब लोग कह रहे हैं कि इतने लोग तेरे ऊपर गिरे पड़े हैं, इतने लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं और तू कह रहा है कि मुझे किसी ने छुआ है। उसने कहा नहीं, मुझ में से कुव्वत निकली है, शिफा निकली है। तब यीशु मसीह को पता चला और तब वो औरत भी डरते हुए आई। ये सारा वाक्य है। और इसी तरह वो जा रहा था। बाद में सारे वाक्य के बाद वो सरदार, इबादत खाना के सरदार जो जाहिर था, उसके घर की तरफ जाता है। लेकिन रास्ते में एक शख्स कहता है कि अब कोई फायदा नहीं, कि तेरी बेटी तो मर गई है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि वो मरी नहीं बल्कि सोती है। और सब उस पर हंसने लगते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ताकि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई मुर्दा जिंदा हो रहा है। और ये यीशु मसीह का मौजज़ा है। यहाँ पर हम एक बाप की जिंदगी को देखते हैं। यार जो था एक बाप था और उसे अपने बच्चे की परवाह थी, अपनी बच्ची की परवाह थी कि जो बीमार थी, बाद में वो बीमारी की जद में आकर मर गई थी। और यहाँ पर हम उसकी परवाह देखते हैं कि एक बाप की फिक्र देखें कि वो किस तरह अपने बच्चों के लिए दौड़ रहा है, किस तरह उसकी फिक्र कर रहा है। इसी तरह यीशु मसीह जो है, खुदा ने, हमारे बाप ने यीशु मसीह को, अपने बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा। किसकी खातिर? हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये यीशु मसीह जो हमारी जिंदगियों में आए हैं, ये उस बाप का मोहब्बत का तकाजा है। वरना हम कोई पुश्त दर पुश्त कोई बेटे नहीं है उसके, बल्कि नहीं, उसने हमें अपने लेपालक होने का हक बख्शा है। यानी कि लेपालक का मतलब लिए हुए बेटे, यानी कि उसने हमें लेपालक होने का हक बख्शा है। और आज हम फक्र से कहते हैं हम उसके बेटे हैं, हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। अगर इसी वाक्य को हम लुका की अंजील में देखें, लुका की अंजील उसका 5 बाब उसकी 54 से 56 आयत तक देखें, तो लिखा है, मगर उसने उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ऐ लड़की उठ। उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। और उसके माँ बाप हैरान हुए और उसने उन्हें ताकीद की कि ये माजरा किसी से ना कहना। ये पहले मरकस बयान कर रहा है इस वाक्य को, अब लुका बयान कर रहा है। अगर हम इस सारे वाक्य को दोनों अंजील में से मिलाकर देखें तो हमें साफ पता चल रहा है कि यीशु मसीह ने जब उससे कहा लड़की से उठ, अगर हम इंग्लिश तर्जुमा देखें तो लिखा है अराइज, यानी कि जिस तरह यीशु मसीह उठ खड़े हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से उठे, जी उठे, इसी तरह उस लड़की को यीशु मसीह कह रहे हैं उठ, यानी कि जिंदा हो जा। और तब क्या हुआ? लुका कह रहा है कि फिर उसकी रूह में वापस आई। ये यीशु मसीह का मौजज़ा है। यीशु मसीह को देखें कि वो आपसे कितना प्यार करता है, कि वो आपको दोबारा जिंदगी देने को तैयार है। अगर हम इसी तरह अपनी जिंदगियों में देखें, आज हमारी जिंदगियों में फल नहीं है, हमारी जिंदगी में ईमान नहीं है। जिस तरह हम मत्ती की अंजील उसके 21 बाब 18 से 22 आयत में देखें तो यहाँ पर हमें अंजीर के दरख्त की कहानी मिलती है। यीशु मसीह जा रहे हैं, उन्हें भूख लगी हुई है, और जब वो अंजीर के दरख्त को देखते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, बड़ी उसकी छो होती है, बड़ा सरसब्ज होता है, ऐसे लगता है बाहर से कि जैसे बड़ा फलदार दरख्त है। लेकिन जब यीशु मसीह जाते हैं तो उसमें कोई फल नहीं होता, उसमें कुछ नहीं होता। और यीशु मसीह उस पर लानत करते हैं। और जो अंजीर का दरख्त है और साल में 2 बार फल लाता है। और जब शागिर्द देखते हैं कि इसने लानत की है, तब यीशु मसीह बयान करते हैं। आज इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में देखते हैं, क्या इस जिंदगी में फल है, क्या इसकी जिंदगी में वो चीज है जो मैं चाहता हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह अंजीर के दरख्त में से अंजीर को ढूंढ रहे हैं, उस फल को जो खाने वाला जिस्मानी है। लेकिन आज यीशु मसीह
उस फल को ढूंढ रहे हैं जो हमारे अंदर होना चाहिए। वो फल कौन से हैं? आइए मेरे साथ निकालेंगे गिलतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत तक। आइए मेरे साथ निकाले गिलतियों की किताब उसका 5 बाब, गिलतियों की किताब उसका 5 बाब उसकी 22 से 23 आयत तक। जो यीशु मसीह फल ढूंढने हमारी जिंदगियों में आते हैं, आइए आज हम देखेंगे वो फल क्या है। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। ये है वो फल जो यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में ढूंढने आते हैं। और बाद में ये भी कहते हैं कि अगर ये फल तुम्हारी जिंदगी में होंगे तो कोई भी शरीयत, यहाँ एंड में क्या लिखा है कि ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अगर हम दूसरे मज़हब में देखें, क्या कोई मजहब है जो चाहता है कि हमारे लोग खुश ना हो, या हमारे लोगों में मोहब्बत ना हो, इत्मीनान ना हो, मेहरबानी ना हो, नेकी ना हो, परहेजगारी ना हो? कोई मजहब नहीं चाहता, कोई शरीयत का मानने वाला नहीं चाहता। चाहे वो यहूदी है, चाहे वो कैथोलिक है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे वो दूसरे मजहब के मानने वाले हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके अंदर ये खूबियां ना। और जो यीशु मसीह कह रहे हैं, जो आज हमारी जिंदगी में फल ढूंढने आ रहे हैं, वो मोहब्बत है। अगर हम मोहब्बत का टॉपिक इस बाइबल में देखें तो बहुत बड़ा टॉपिक है मोहब्बत का। करंथियों की किताब उसका 13 बाब उसकी 13 आयत में पौलुस कहता है, गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है। दायमी का मतलब क्या है? कभी ना खत्म होने वाले, यानी कि एवरलास्टिंग, जो कभी ना खत्म हो। कहता है पौलुस के गर्ज, ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, यानी कि तीनों हमेशा कायम रहने वाले हैं। लेकिन मगर अफजल इनमें क्या है? मोहब्बत। ये है मोहब्बत जो यीशु मसीह ने हमसे की, आपसे की, कि यीशु मसीह ने आपकी खातर सलीब पर अपनी जान दी। और आज यीशु मसीह आपकी जिंदगियों में वो फल ढूंढने आ रहे हैं कि मैंने इनसे मोहब्बत की, क्या ये मुझसे मोहब्बत करते हैं? यकीनन हम एक बदन है, हम सब मसीह में एक अज़ा है। अगर हम उसके कलाम पर चलेंगे नहीं तो हमारी जिंदगियों में फल कैसे आएगा? जब हम यीशु मसीह के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो खुद ब खुद हमारे अंदर हिलम आ जाता है, परहेजगारी आ जाती है, हम दूसरों से मोहब्बत करना सीख जाते हैं। ये है यीशु मसीह की वो तालीम जो यीशु मसीह हम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जिंदगियों में अपने फल लाएं। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है, क्या कोई ऐसा बेटा है जो अपने बाप से रोटी मांगे और उसका बाप उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे या बिच्छू दे? बल्कि नहीं, खुदा का कलाम क्या कह रहा है? जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों ना जानेगा? मेरे अजीजों, आज खुदा का कलाम आपको यही कह रहा है कि आप अपनी जिंदगियों में फल लाएं। यकीनन वो दिन बहुत नजदीक है। हम नहीं जानते कि आज ही वो दिन आ जाए, आज रात आ जाए, अभी आ जाए, कोई पता नहीं। आज हम देख सकते हैं वो निशानियां मौजूद हैं जो हमें बताई गई हैं कि आखिरी दिनों में, आखिरी अयाम में ये होगा। हमें कुछ नहीं पता। हम तो अपने सर का एक बाल भी अपनी मर्जी से सफेद या काला नहीं कर सकते। वो यीशु मसीह है जिसने हमें ये कुव्वत दी है, ये एबिलिटी दी है, हम कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज वो दिन बहुत नजदीक है जब यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आएंगे, वो फल ढूंढेंगे। और कलाम में लिखा है कि माली था, उसने दरख्त उगाया, मालिक था, जब वो आया उसने उसमें फल देखा, नहीं पाया। उसने फिर मौका दिया, नहीं पाया। फिर अगली बार, फिर जब तीसरी बार भी नहीं हुआ तो उसने उसे कहा कि इसे काट कर आग में डालो। यकीनन
हम भी आज वो दरख्ताना बन जाएं कि जब यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में आए तो वो देखे हमारी जिंदगियों में फल ही नहीं है, तो वो हमें क्या कहेगा, इसे काटो और आग में फेंक दो। और हमारे लिए फिर वो आग होगी जहां रोना और दांतों का पिसना होगा। आइए अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, आइए अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा से दुआ मांगेंगे, अपनी जिंदगियों में गौर करेंगे, क्या हमारे